So dear students, in today's session I will discuss with you today's the Hindu newspaper, that is 27 January 2022. और आज के हम हिंदी न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे some news regarding COVID and human trafficking, federal structure, some information about sport built pelicans, food processing, Holocaust, Republic Day celebration, INS Khukri, and whether drunken driving is an offense or not. I will also discuss with you the conflict between US and Russia regarding Ukraine's membership of NATO. So I will discuss all these topics with you in today's session. Now we come to these topics one by one. Dear students, I will only discuss the important news and I will discuss the important terms of the particular news. Sometimes the news may not be important, but the term asked in that particular news may be very important for you from your examination point of view. So मैं आपके साथ उतनी ही चीजें डिस्कस करूंगा जितनी कि आपके लिए जरूरी हैं. Your admissions form for CLAT are open and the last date to fill the CLAT form is 31st March 2022. So fill your form timely. These news are not important from your examination point of view. So now we come to this news, government to recommend school reopening at DDMA meeting. So this is not important from your examination point of view, but this is important from the point of view of your offline classes. So we hope that we will resume your offline classes very soon. The decision regarding removing all these barriers will be taken today and you will become to know by tomorrow. Now we come to some important parts of the news. Rampant human trafficking from Gujarat in the spotlight. So this news is very important for you from your examination point of view. What happens in this news? There is human trafficking. You may be aware the term human trafficking. Basically, human trafficking is an offense under section 370 of IPC. ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंस है जो 370 आईपीसी में एक अपराध है. अब हम पहले समझते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीनिंग क्या होता है. दिस न्यूज मे नॉट बी सो इम्पोर्टेंट बट द टर्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को एक देश से दूसरे देश में इलीगली भेजा जाता है या लोगों को एक कमोडिटी की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह खरीदा और बेचा जाता है. दिस इज अ रिसेंट केस बिफोर अस. तो यहाँ पर एक फैमिली जो गुजरात की फैमिली थी, इट वाज फाउंड डेड, ठीक है, ऑन द यूएस एंड कनाडा बॉर्डर. ये लोग वहां पर डेड फाउंड हुए हैं यूएस और कनाडा बॉर्डर पर. और इससे एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता चला है कि इस तरह के बहुत सारे लोग गुजरात से कनाडा और यूएस की इलीगल वे में सिटीजनशिप पाने की मतलब कोशिश करते हैं और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंग है. सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. माय पॉइंट हियर इज टू नो द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 370 of IPC, because all of you are the aspirant of law, and it is also a prohibited act under Article 23 of Constitution of India. You must know this. You may not be asked the question on this news, but the terms are very important from your examination point of view. So I will cover the most important part from your examination point of view. Now we come to this news of protect the federal character of Constitution. So here we need to understand what do you mean by term federal character. So federal character means in India, our country has a federal structure, and federal structure means the power, all the powers have been divided between the center and state.
सो संविधान में जो भी पावर दी गई हैं उन पावर को सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, बट द पावर्स हैव नॉट बीन इक्वली डिवाइडेड। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पावर को इक्वली डिवाइडेड नहीं किया है, बल्कि सेंटर को कुछ मोर पावर्स दी गई हैं। सेंटर को ज्यादा पावर क्यों दी गई हैं? बिकॉज सेंटर नीड्स मोर पावर टू गवर्न द कंट्री इन ए प्रॉपर मैनर, इसलिए सेंटर को मोर पावर दी गई हैं। एंड अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसमें सेंटर को पावर या फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हमें कहां से मिलता है? सो यू मे रेफर फॉर इट आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which says that India, that is Bharat, will be a union of states. Now we come to next. All these are political news and not relevant for you. Now we come to this news, and in this news we will only cover the important portion of it. So there is a bird, namely sport-billed pelican. So these birds have been found dead in the state of Andhra Pradesh, and the reason of their death is the infections. So now we come to this. A nematode infections has led to the mass mortality of sport-billed pelicans in the state of Andhra Pradesh. So here you must know the name of this institute. The name is Wildlife Institute of India, that is in Dehradun. So this may be the important information for you कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर पाया जाता है या कौन से स्टेट में स्थित है? सो द आंसर इज इट इज फाउंड इन देहरादून, एंड देहरादून इज इन उत्तराखंड। दूसरा कि एग्जामिनर, देखिए दिस इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर क्लैट एस्पिरेंट, बट दिस में बी रेलिवेंट फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है। जैसे कि भाई कौन सी जो वो है बर्ड है जिसको एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में हम फाल करने वाली है, या एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो फाल करने वाली है। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं रेड बुक। तो यहाँ पर ये रेड बुक भी रेलिवेंट है। तो रेड बुक इज अ बुक विच कंटेन द नेम ऑफ दोज स्पीसीज विच आर गोइंग टू बी डिसअपियर वेरी सून, या और एंडेंजर्ड स्पीसीज। सो रेड बुक एक ऐसी बुक है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम लिखे होते हैं। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। Now we come to this, unlock India's food processing potential. So basically this article is important. So now you should know that what is the meaning of food processing. So basically जब हम अपने फूड को एक प्रोसेस करके उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में, दिस इज नोन एज द फूड प्रोसेसिंग। सो ऑथर इसमें ऑथर है इसमें हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन हमको ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक आने वाले समय में हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ रही है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है वो काफी कम हो रही है। सो हेयर इट इज अ नीड दैट वी शुड फोकस ऑन द फूड प्रोसेसिंग। अब अगर हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे हमारे लिए दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी जनता को, जो कि हमारी एक वास्ट पॉपुलेशन है, उसको भी प्रॉपरली खाना खिला पाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट ये होगा कि दैट we may also export this processed food to the various countries, and this will also not affect the environment. So it will also provide for the sustainable development. Up here the word sustainable development is very important for you. So sustainable development क्या है? Sustainable development वो development होता है जिसमें हम development भी करते हैं, but we don't affect the environment or we don't injure the environment. So ऐसा development जिसमें हम development भी करते हैं और हम environment को affect नहीं करते हैं, this is known as the sustainable development. Now we come to this. This news is very important. Remembering the Holocaust. Now the word Holocaust is important for you
एंड हॉलोकास्ट बेसिकली होता क्या है? सो हॉलोकास्ट मीन्स क्रिएट, इट इज अ काइंड ऑफ जेनोसाइड. जेनोसाइड मीन्स एक ही तरह के लोगों को, या एक धर्म के लोगों को, एक कास्ट के लोगों को, या एक क्रेड के लोगों को मारना. अब इन दिस केस और इन दिस न्यूज, जो ऑथर है हमारा नॉर गिल्टन वाल्टर, सो बेसिकली ये इस बात पर फोकस कर रहा है इसमें कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो एक हेट स्पीच की वजह से, या उनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, उनके दिमाग में एक इस तरह का, उनके माइंड में इस तरह का कंसर्न किया जा रहा है कि वो एक दूसरे से नफरत करें. एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक टेम्पर. वो अपने साइंटिफिक टेम्पर पे फोकस नहीं कर रहे हैं और अपनी रिसर्च पे फोकस नहीं कर रहे हैं. लेकिन वो किस पे फोकस कर रहे हैं? वो एक हॉलोकास्ट पे फोकस कर रहे हैं, हेट इश्यूज फोकस कर रहे हैं. इसमें ऑथर ये भी सजेस्ट कर रहा है कि देयर शुड बी सम प्रोविजंस रिगार्डिंग, और देयर शुड बी सम रेगुलेशंस फॉर द हेट स्पीच और द हॉलोकास्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. सो इसमें देखिए ऑथर यहाँ पर कहता है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कहता है. द सिचुएशन is worse in language other than English, as social media companies, including Facebook and YouTube, lack global content moderation team. So basically, आज ये होलोकास्ट के लिए या हेट स्पीच के लिए काफी हद तक हमारी सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल. क्यों रेस्पॉन्सिबल ये हैं कि इफ ए पर्सन post any hate speech content on the social media, then they don't have the proper regulation for that. Here, this is very important from your examination point of view. यहाँ पर हम कोट करते हैं आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या कहता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अगर हम इसको इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं, सो वी फाउंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब ये जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को बोलने का और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का राइट देता है. बट दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. ये राइट अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, रादर इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो ये हेट स्पीच से संबंधित देयर वाज ए केस इन इंडिया, एंड द नेम ऑफ केस वाज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. So what happened in this case? इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक था सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ये सेक्शन क्या कहता था? इफ somebody post any hate speech or offensive content on social media, then that person could be arrested under this section, means section 66A of Information Technology Act. But the constitutional validity of this section was challenged in the case of Shreya Singhal versus Union of India. इस केस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया. सो ऑनरेबल कोर्ट struck down this section in this case and held that it is against the right to speech and expression. Now we come to next. देखो बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है? एग्जामिनर choose some important terms, choose some important concept from the newspaper, and then he asked that concept in your examination. Every news may not be important, or examiner may not ask the question from the news, ठीक है, but examiner will ask the question from the concept. All these are political news. Now we come. So recently yesterday we celebrated 73rd Republic Day in our country, and generally the one important question every year your examiner asks is that who was the chief guest on this Republic Day. So पहला आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है,
कौन सा रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया रिसेंटली? सो दैट इज 73rd रिपब्लिक डे। दूसरा, who was the chief guest? So basically we are not having any chief guest since last 2 years. जब से ये कोविड की प्रॉब्लम आई है, till then we are not having any chief guest in India. So sometime examiner में confuse you, आपसे examiner ये क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हमारे 26 जनवरी 2022 पर कौन चीफ गेस्ट था। सो देयर वाज नो चीफ गेस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड। आप इस बात को ध्यान रखेंगे and you will not get confused in your examination. All these are political news. Now this news is important for you. Decommissioned INS Khukri to be converted into museum. So INS Khukri को decommissioned करके, तो बेसिकली कमीशन का मतलब होता है जब वो काम पे जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये एक हमारा नेवी का शिप है। सो इसका नाम क्या है? INS खुखरी। सो कमीशन क्या होता है? जब वो उस पर काम करता है, मतलब जब वो काम पे जाता है या हमको कोई पर्टिकुलर टास्क उसको असाइन करते हैं, दैट इज कमीशन। और डीकमीशन क्या है? जब हम उसके उस टास्क से हटा देते हैं या उसको वहां से एक काइंड ऑफ रिटायरमेंट दे देते हैं। सो अब क्या हुआ है? INS खुखरी को डीकमीशन कर दिया है एंड नाउ इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। तो अब इसको लोग एक म्यूजियम की तरह अब इसको लोग म्यूजियम में इसको देख पाएंगे। सो दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसमें कि INS खुखरी को अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। INS खुखरी कौन था? तो ये क्या है? इट वाज अ शिप और नेवी, ठीक है। और अब इसको किसको दे दिया गया है? नाउ इट हैज बीन गिवन टू दीव एडमिनिस्ट्रेशन। सो दमन और दीव जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको दे दिया गया है। सो नाउ इट विल रिमेन इन म्यूजियम ओनली। Now there is a recent controversy regarding the test of RRB and NTPC category, ठीक है। सो इसी में आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इसमें ये कुछ एलिगेशन था जो एस्पिरेंट थे इस टेस्ट के, कि इस टेस्ट में कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो उस इरेगुलरिटीज को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ट्रेन को बर्न कर दिया। आप ऐसा पिक्चर में भी देख सकते हैं। और जब ट्रेन को बर्न कर दिया उन लोगों ने, सो इस पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दीपक पैटर एंड ही इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेलवे बोर्ड, ठीक है। ये इस कमेटी को चेयर करेंगे। और सो नाउ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज दैट you may be asked the name of the person Deepak Peter who has been made the chairperson of this committee. And one more important is that whether burning the train will come under Article 19 clause B or not, means whether it is a protest or whether this kind of protest is allowed in our country. देखिएगा, अगर कोई irregularities थी, so they have the right to protest, but the mode they have adopted, whether it is justified or not, so answer is no, ये justified बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम इसको एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 19(1)B जो हमें राइट टू पीसफुल असेंबली देता है, वो क्या कहता है? दिस असेंबली इज पीसफुल। तो अब अगर ट्रेन बर्न हो रही है तो वी कैन नॉट कंसीडर दिस काइंड ऑफ असेंबली एज ए पीसफुल असेंबली। सिमिलरली, destroying the public property is also an offense under section 425 of IPC. आप हम इसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक ऑफेंस है ऑफ सेक्शन 425 IPC में, और ये पीसफुल असेंबली का पार्ट नहीं है।
means it is an offense. So if somebody has any concern, somebody wants to do the protest, then that person has the right, but it should be in a lawful manner. Now this is important. Russia hits out at West over threat to sanction on Putin. So basically, you may be aware that there is a controversy between US and Russia. अब ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? यहाँ पर एक कंट्री है यूक्रेन. यूक्रेन जो है, यूक्रेन इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ रशिया, इसके नेबरिंग कंट्री है. और ये यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन इज ट्राइंग टू टेक द मेंबरशिप ऑफ नाटो. ये नाटो की मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहा है. अब नाउ रशिया हैज ऑब्जेक्शन ओवर दिस. रशिया का इसका ऑब्जेक्शन है. अब व्हाट इज द रीजन व्हाई और ऑन व्हाट ग्राउंड रशिया इज ऑब्जेक्टिंग? तो रशिया का एप्रीहेंशन ये है, इफ नाटो विल एक्सटेंड टू दिस एरिया or area of Russia, then it will create a security threat to Russia. So रशिया के पास अपना ये राइट है कि ये अपने इंटरेस्ट को और अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि whether Russia can prevent Ukraine from taking membership. So there may be two answers. There are two answers of this question. One is that no, Russia do not have right, Russia does not have any right to prevent Ukraine from taking membership of NATO. So what is this reasonable apprehension? But Russia also has the right to protect itself. Russia के पास ये right है कि वो अपने आप को protect कर सकता है, but it cannot prevent the Ukraine from taking membership of NATO. Now the Russia is demanding that, you will read here, Russia is demanding that US should give legal security guarantee on NATO. So basically, what is the concern of Russia? Russia का concern ये है कि US को एक security guarantee देनी चाहिए NATO के बारे में. अब basically क्या है? NATO, अब here the full form of NATO is important for you. North, the full form of it is North Atlantic Treaty Organization. अब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, ये उस टाइम पर बनी थी जब देयर वाज कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. तो बेसिकली अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर थी. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक्चुअल वार नहीं होती लेकिन वार लाइक सिचुएशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर. अब रशिया का एप्रीहेंशन ये है कि अगर नाटो हमारे क्षेत्र में आएगा, ठीक है, सो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. एंड एज पर द एलिगेशन ऑफ यूएसए के एलिगेशन के अनुसार यूएसए रशिया के खिलाफ ये एक्शन प्लान कर रहा है कि that if Russia will attack on the Ukraine, then Russia will have to face some bad consequences. But Russia is clarifying here that they don't have intention to attack on Ukraine. Rather, they are only concerned with their own security. So देखिएगा, अगर हम इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां तक उनकी अपनी सिक्योरिटी का मैटर है, रशिया के पास राइट है कि वो अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है या अपनी पब्लिक को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है. बट इट डज नॉट हैव राइट टू अटैक दिस यूक्रेन merely on the ground that this Ukraine is going to get this membership of NATO. Now we come to next. These news are not important for you from your examination point of view. Now this is important for you. The racial profiling of Chakma and Hazongs. Now
These are two communities or tribes found in our country. So क्या हो रहा है? These communities are mainly found in the state of Mizoram and Tripura. ठीक है? और there are allegations, or the allegations of these communities are that their human rights are violated by the other tribes. So this Human Rights Commission or National Human Rights Commission has issued notice to the concerned state government to look after the matter, to look into the matter, that why the right of these people are being violated. National Human Rights Commission is a body which protects the right of individual or human rights of individual. So, dear students, that's all for today. I will come again with tomorrow's newspaper. Till then, thank you very much. Goodbye. Please take care of yourself.